Bismillahirrahmanirrahim. Today we have our next theory, and it's a reader response theory. But before we start reader response theory, I would like to ask you people if anybody has any question, any point of discussion about Freudian or Lacanian psychoanalysis. We first discuss it and then move on to reader response theory. Or should I move on to reader response theory if psychoanalysis is clear? Should I start reader response theory? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, reader response theory. And before we start to discuss it, let me brief that different theories have different point of focus on different things. For example, some theories are concerned with writer, some with text, some with context, and some with reader. First impression when a reader looks at the text and he gathers what he reads is very important and is the primary concern of this theory. It was popular in 1930s and reader response theory got prominent in 1970s, and it was actually a reaction to new criticism because new criticism focused on the text, and it was actually a response to that text focusing theory of new criticism formalism. So we can even make comparison or contrast with new criticism or formalist theory of literature. There are certain important principles of reader response theory, and it's the role of reader, number one, and second is the readers are not passive consumers. Readers are not passive consumers. Rather, they become creative when they read a text. They should apply certain strategies, certain approaches to reading a text. And through that critical reading and improved and refined sort of reading would give them their impression, understanding of the text. Reader may find different meaning of same text. Different reader may have different understanding, different interpretation of a text, and same text may have different meaning for same reader. So when you undergo multiple reading of the same text, you may have a multiple meaning, multiple understanding, and multiple impression of the text, right? For example, हर दफ़ा जब आप लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसके कुछ डिफरेंट मानी, कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके पास आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ रीडर जो हैं वो पढ़ें तो एक ही टेक्स्ट जो है उसके मानी जो है वो सबके लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टेक्स्ट के जो है वो एक ही रीडर के लिए मुख्तलिफ मानी भी हो सकते हैं। Different meaning occur of a text because of certain factors, and those factors include knowledge of the reader, different experiences of the reader, moods and observations, and purpose of reading. So because of these factors, meaning
different meaning appear of the same text, or different meaning may appear of a text among different readers. आप इसकी एग्जांपल जो है वो डॉक्टर फॉस्टस से जो वो ले सकते हैं, उसका मॉरल पर्सपेक्टिव से भी, और उसकी अगर आप ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव करें, आप उसका साइको एनालिसिस कर लें, आप उसकी स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो रीडिंग कर लें, आप उसकी जो है वो डिकंस्ट्रक्शनिस्ट रीडिंग कर लें, तो फॉर्मलिस्ट रीडिंग कर लें, तो मतलब हर पर्सपेक्टिव में, हर एंगल में आपके पास जो है उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड different meaning of a text. The two boys ran until they came to the driveway. See, I told you today was good for skipping school, said Mark. Mom is never home on Thursday, he added. Tall hedges hid the house from the road, so the pair strolled across the finely landscaped yard. I never knew your place was so big, said Peter. There were front and back doors and a side door which led to the garage, which was empty except for 3 parked 10-speed bikes. So positive elements as a house buyer and positive element as a robber. एक बंदा पढ़ता है तो उसको जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट देखता है कि जो हाउस बायर है, जिसने वो घर खरीदा है, उसके पॉजिटिव, दूसरा बंदा जो है उसको रॉबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. तो मतलब डिफरेंट लोगों की जो मीनिंग है एक टेक्स्ट से मुतल्लिक जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई उसमें कोई मीनिंग दे सकता है, कोई उसमें कोई मीनिंग दे सकता है, कोई उसमें कोई मीनिंग दे सकता है. Text is not an object. Text is not an object. Text is an event. It occurs. Text is an event. It occurs. Though different opinions are expressed by theorists, though different opinions are expressed by theorists, different is on the formation of response. Difference is on the formation of responses. एक तो ये है कि डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं वो आप लोग डिफरेंट थेरीज जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो जिस किस्म की थेरी आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, वैसे ही जो है वो आपका रिस्पांस उसके अंदर आएगा. आपका रिस्पांस की जो फॉर्मेशन है वहाँ पर भी जो है वो डिफरेंस हो सकता है, और उससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी परसेप्शन जो है वो ऑफ द टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है. टेक्स्ट आपका जो है वो रिस्पांस फॉर्मेशन में जो है क्या रोल प्ले करती है, ठीक है, उसका भी जो है. तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक इवेंट है जो अक्कर होता है. डिफरेंट अप्रोचेज हैं रीडर रिस्पांस थ्योरी को जो है वो देखने के लिए. जैसे ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पांस थ्योरी है, आप इसे रीडर रिस्पांस थ्योरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं. अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स है, सब्जेक्टिव रीडर रिस्पांस थ्योरी है, साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पांस थ्योरी है, सोशल रीडर रिस्पांस थ्योरी भी है. तो इस तरह से जो है वो इसको डिफरेंट एंगल की बिना पर जब थ्योरी को देखा जाता है उसके पर्सपेक्टिव में. इसी तरह से मार्क्सिस्ट रीडर रिस्पांस थ्योरी भी दे सकते हैं, फेमिनिस्ट रीडर रिस्पांस थ्योरी भी हो सकती है. वो एक्चुअली वो डिफरेंट लेंसेज हैं जिनके थ्रू जो है वो आप किसी चीज़ को जो है वो देख रहे होते हैं. वो डिवीजन जो है इन अप्रोचेस के अंदर वो एक आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट. मेन जो प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इसको थ्योरी को प्रेजेंट किया है उसमें लुई रोजनब्लॉट हैं और वोल्फगैंग आइजर हैं. और जो अप्रोच है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पांस थ्योरी की वो दोनों पर ही फोकस करती है, टेक्स्ट पर भी और रीडर पर भी.
ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है उसके प्रोपोनेंट्स जो है वो लुई रोजनब्लाट और वोल्फगैंग आइजर हैं, और फोकस जो है उसका वो टेक्स्ट पे भी है और रीडर दोनों ही फोकस है। ट्रांजैक्शन जो है वो टिक टिक कैसे जो है वो अकर होती है। टेक्स्ट इज स्टिमुलस, रीडर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वही जैसे फॉलो कर रहे हैं आप लोग, तो उसके अंदर जो है डिफरेंसेस इन रीडर इन्फ्लुएंस मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। डिफरेंसेस इन रीडर्स या अमंग रीडर्स जो है इन्फ्लुएंस मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। हर जो एक रीडर है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस रखता है, उसकी अपनी यूनिक ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है, नॉलेज है, ठीक है। और जो फैक्टर्स हम लोग ऑलरेडी मीनिंग मेकिंग के हवाले से देख चुके हैं, हर इंडिविजुअल को वो डिफरेंट है। इसलिए जो है वो जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर उनका जो डिफरेंसेस हैं रीडर्स के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी ऑब्वियसली वो शामिल है, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं उस मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को। हाउएवर टेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट। टेक्स्ट जो है वो आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है जैसे, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। टेक्स्ट करेक्ट्स आवर इंटरप्रिटेशन। तो टेक्स्ट जो है वो हमारी उस इंटरप्रिटेशन को जो है वो बेसिकली करेक्ट करती है। हम कुछ भी अस्यूम कर सकते हैं उसमें, लेकिन जब हम लोग उसको टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे तो हमें अपने असम्पशंस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके थ्रू जो है वो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ हमने गलत देखा चीज़ों। क्या टेक्स्ट उस बात को जो है वो कोई एविडेंस हमें देती है कि हम लोग उसको वेरीफाई कर सकें कि ये मीनिंग इसके जो है वो रेलेवेंट हैं टेक्स्ट से। इसलिए टेक्स्ट जो है वो हमें हमारी इंटरप्रिटेशन को, हमारी जो मीनिंग हम लोग एक्चुएट करते हैं उससे, या परसीव हमारी जो परसेप्शन है तो उसको करेक्ट करती है। री रीडिंग, फिर इसमें ये होता है कि हम लोग री रीड करते हैं चीज़ों को। हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हम लोग चीज़ों को रीड करते हैं, हो सकता है कि बहुत वाज़ेह ना हो, बट हम लोग जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं, थर्ड टाइम पढ़ते हैं, फोर्थ टाइम पढ़ते हैं, तो हम उन चीज़ों के हवाले से जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हमारे पास एक ही टेक्स्ट के जो है वो ज़्यादा डीपर मीनिंग या ज़्यादा जो है वो मल्टीपल मीनिंग जो है वो अचीव हो सकते हैं हम। टेक्स्ट गाइड्स इन सेल्फ करेक्शन प्रोसेस। तो एक काम जो है वो टेक्स्ट ये करते हैं कि हमें सेल्फ करेक्शन के प्रोसेस में से गुजारती है, जहां हम लोग जो है वो बार बार रीडिंग के थ्रू जो है वो अपने ही बनाए हुए पहले दूसरे तीसरे मीनिंग को जो है वो उनकी करेक्शन कर रहे हैं। अगर चाहे हम लोग कभी भी जो है वो उसकी एग्जैक्ट जो है ये एब्सोल्यूट जो है वो इंटरप्रिटेशन पे नहीं पहुंच पाते, बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के हवाले से वो रिफाइन होती चली जाती है, इम्प्रूव होती चली जाती है। Basically, creation of text is due to transaction. बुनियादी तौर पर वो कहता है कि जो क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट है इज ड्यू टू ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली जो है वो इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने में जो वो अपना रोल प्ले करती है, उसी के होने में मदद होती है जो क्रिएशन जो है वो टेक्स्ट की होती है, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो उसके क्या मानी होंगे, आप जो मीनिंग उसके जो एक्चुएट करेंगे वो टेक्स्ट और रीडर के दरमियान जो है किस्म की ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप की बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं, बैंक के साथ आप ट्रांजैक्ट करते हैं, सर्टन आप लोग जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और फिर उसके बदले में जो है वो आपको जो है वो पर्पस अचीव होता है। दैट इज दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। बोथ टेक्स्ट एंड रीडर आर इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों जो है वो टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है और रीडर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट अवेलेबल होगी तो रीडर उसको जो है वो रीड करेगा, और वो रीड करेगा तो टेक्स्ट को उस वक्त तक उसका कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई मानी नहीं है जब तक रीडर उसको कोई मानी देता नहीं है, उसको एक्चुएट नहीं करता, उसकी टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं करता। ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन देयर इज एस्थेटिक रीडिंग। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि दो तरह की रीडिंग होती है, एक एफरेंट रीडिंग होती है और एक एस्थेटिक रीडिंग होती है। जो एफरेंट रीडिंग होती है बेसिकली उसका ताल्लुक जो है वो महज आपकी इंफॉर्मेशन पे होता है, जबकि जो
एस्थेटिक रीडिंग है उसमें आप लोग जो है उसकी चीज़ों को रीलिव करते हैं। यू प्लेस योर सेल्फ अमिड्स द टेक्स्ट, ठीक है, आप उसको एक क्रिएटिव प्रोसेस बनाते हैं एस्थेटिक रीडिंग को, तो आपके सामने जो है वो न्यू विस्टास ऑफ मीनिंग जो है वो ओपन होते हैं, आप मल्टीपल मीनिंग जो है वो आप उसको अचीव करते हैं। सो ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन देयर इज एस्थेटिक रीडिंग, उस वक्त ये मुमकिन होता है जब आप लोग जो है वो एस्थेटिक रीडिंग करते हैं, डीपर जो है वो रीडिंग करते हैं। अब सर्टन जो अपने पास आपकी स्ट्रेटजीज हैं रीडिंग की, आप उसको जो है वो अप्लाई करके जो है वो उसके मानों को एक्चुएट करते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्रंट और एस्थेटिक रीडिंग की जो है वो, जैसे इडिपस रैक्स है, ड्रामा पढ़ा आप सब लोगों ने, ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। एफरेंट रीडिंग वुड बी लाइक, तो एफरेंट रीडिंग जो है वो कुछ इस किस्म के सवाल जो है वो होंगे उसके अंदर। इडिपस वाज किंग ऑफ थीव्स, he set an inquiry, he turned out to be the murderer and he blinded himself in the end, queen killed herself। तो ये जो है वो चंद इन्फॉर्मेशन जो एफरेंट रीडिंग है जिनके ऊपर फोकस करेगी। अगर तो इन चीज़ों के हवाले से, इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो आपकी रीडिंग जो है वो एफरेंट रीडिंग होगी। लेकिन अगर आप लोग एस्थेटिक रीडिंग की तरफ जाएंगे तो एस्थेटिक रीडिंग जो है वो कुछ इन चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर फोकस करेगी कि किंग की जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसा किंग है किंग इडिपस जो है, वो कौन शख्स है जो अपने मैसेज को हेल्प करना चाह रहा है। टायरिसिस है, किंग इडिपस है, क्रियोन है, गॉड्स हैं, कौन है जो उनको हेल्प करना चाह रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वॉज रूल्ड बाई फेट। लेकिन एक्चुअली जो है वो होता है क्या है कि जो किंग इडिपस है, क्या वो अपनी मर्जी से जो है वो मर्डर बना, वो एक इंसेस्चुअस रिलेशनशिप में गया अपनी माँ के साथ, क्या कोई और पावर है या कोई और फोर्स है, कोई और एजेंट है जिसने जो है वो उसको इस सारे मरहले से गुजारा। सो बेसिकली फेट डूम्स इडिपस रैक्स और इज फेट। तो वो अपने बाप को कत्ल करता है, अपनी माँ से शादी करता है, उससे उसके बच्चे होते हैं जो एट द सेम टाइम उसके बहन भाई भी हैं और उसके जो है वो बेटे बेटियाँ भी। इतना शेमफुल जो है रिलेशनशिप, और उसी शेम के जो है वो पादाश में जो है वो जो कैस्टा जो है वो अपने आप को हैंग करती है और किंग इडिपस जो है वो अपने आप को ब्लाइंड करता है। He tried to solve mystery of his own life। तो जितना वो कॉन्फिडेंट है और कॉम्पिटेंट है तो he is a bit proud of his wit, और उसमें जो है वो स्फिंक्स की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करता है और वो समझता है कि वो कोई भी मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज ब्लाइंडेड बाय हिज ओन विट एंड couldn't understand his own riddle of his own life। अपनी जो रिडल ऑफ उसकी आइडेंटिटी है उसको वो खुद सॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, उसके लिए जो है कि लंबी इंक्वायरी जो है उसको सेट करना पड़ती है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मोड़ आते हैं जहाँ जहाँ पे उसको लगता है कि वो इस इल्ज़ाम से बरी है। लेकिन फिर कभी कभी उसे लगता ये भी है कि शायद वो खुद ही जो है वो कातिल है अपने बाप का, एक जो है वो लायस है उसका। लेकिन फिर जो है वो मरहला आता है तो उसे लगता है कि नहीं, वो इस इल्ज़ाम से बरी है। बट अल्टीमेटली जो है he comes to the conclusion that he himself was the murderer। और उसने जो है वो एक अननेचुरल जो है वो एक्ट कमिट किया है और उसमें उसने अपने बाप को कत्ल किया है और अपनी माँ से शादी की है। It was such a shameful act as it forced him to blind himself and it forced also Jocasta to commit suicide। So he tried not to fulfill the prophecy। उसने कोशिश तो ये की थी कि उसकी प्रोफेसी जो है वो जो उसके बारे में थी कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा, अपनी माँ से शादी करेगा, तो उसको फुलफिल ना होने दे। लेकिन उसकी यही कोशिशें उसे इस प्रोफेसी की फुलफिलमेंट के करीब ले आती हैं और वो उनको उस मिस्ट्री को, उस प्रोफेसी को जो है वो फुलफिल कर देता है।
इस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन, इस किस्म की जो रीडिंग है टेक्स्ट की, दैट इज एस्थेटिक रीडिंग. इट्स नॉट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, rather it is for the aesthetics. Wolfgang Iser जो है what is referred to as stimulus and blueprint by Rosenblatt is referred to as terminate meaning and indeterminate meaning by Iser. तो वॉल्फगैंग आइजर जो है वो जिस तरफ इशारा करता है स्टिमुलस और ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करता है टेक्स्ट की, तो उसी का जो है वो अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें हम लोग जो है वो रोजनब्लाट के हवाले से, रोजनब्लाट जो है वो इसको इन दो टर्म्स में जो है वो डिफाइन करता है, डिटर्मिनेट मीनिंग पे और इनडिटर्मिनेट मीनिंग. सॉरी, जो रोजनब्लाट है तो वो जो है वो इसको इस तरह से बयान करता है डिटर्मिनेट मीनिंग और इनडिटर्मिनेट मीनिंग के हवाले से. आइजर जो है वो डिटर्मिनेट मीनिंग और इनडिटर्मिनेट मीनिंग की बात करता है, जबकि रोजनब्लाट जो है वो बात करता है स्टिमुलस और ब्लूप्रिंट. सो बी केयरफुल. डिटर्मिनेट मीनिंग क्या होते हैं जी? जैसे फैक्ट क्या है, इवेंट्स प्लॉट के क्या क्या है. जबकि जो इनडिटर्मिनेट मीनिंग है, जैसे जो गैप्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर, जहां पर हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो काम करती है, उन गैप्स की जो है फिलिंग होनी है. नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन, वो बातें जो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होती, सो वी हैव टू इंटरप्रेट इट. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सो वी हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशन फॉर दैट पर्पस. वो प्रॉपरली एक्सप्लेन डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं होती, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है वहाँ पर. जो है हो सकती है कि ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है और ऐसा भी मुमकिन है. जबकि जो फैक्ट्स होंगे उसके अंदर या इवेंट्स होंगे प्लॉट के अंदर, तो वो कहलाएंगे डिटर्मिनेट मीनिंग. रोजनब्लाट्स इफेक्ट एफरेंट रीडिंग डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेट मीनिंग. तो उसकी जो है वो एफरेंट रीडिंग जो है वो बेसिकली, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो फैक्ट्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन के लिए जानने के लिए होती है. तो यहाँ पर जो है वो उसी फैक्ट्स की बात या इवेंट्स ऑफ द प्लॉट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेट मीनिंग को जो है वो शो करेंगे. जबकि उसकी जो एस्थेटिक रीडिंग है वो डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, डिटर्मिनेट के ऊपर भी और इनडिटर्मिनेट मीनिंग के ऊपर भी. इन दोनों के साथ जो है वो रिलेट करें. सो डिटर्मिनेट मीनिंग आर इडिपस, किंग, लेग, इंक्वायरी, ब्लाइंडेड, डेथ. ये वो फैक्ट्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं. ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इडिपस रेक्स के हवाले से जो है हम लोग देखते हैं. और व्हाट वी डू नॉट नो इज इनडिटर्मिनेट. बर्डन जो है वो इज ऑन द रीडर. उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है, उस उन गैप्स को जो वहाँ टेक्स्ट में मौजूद हैं उनको जो है वो ब्रिज करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ. मल्टीपल लोग रीडर जो हैं वो मल्टीपल जो वो इंटरप्रिटेशन की देते हैं. इट लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. सो कनेक्शन बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट मीनिंग. फॉर आइजर रीडर प्रोजेक्ट्स मीनिंग बट टेक्स्ट गाइड्स अस. बात उसकी भी वही है कि मीनिंग अगरचे जो है वो प्रोजेक्ट करने होते हैं रीडर ने, बट एक्चुअली जो टेक्स्ट है वो उसको गाइड करती है कि आपने किस तरफ जो है वो मीनिंग को जो है वो मीनिंग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको लेके जाना है, कौन से मीनिंग एक्टिवेट करना है. सो कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम टेक्स्ट आर पॉसिबल, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्स्ट इज देयर. आप टेक्स्ट के बगैर जो है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं देख सकते. टेक्स्ट का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ टाइम वी मॉडिफाई आवर रिस्पॉन्सेस. और बाज़ औक़ात जो है वो हम लोग अपने रिस्पॉन्सेस को जो है वो मॉडिफाई भी करते हैं. जिस बहुत किस चीज़ का नहीं पता चला हमें, तो हम लोग उसको जो है वो
जब पता चलेगा तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो चीज़ें थोड़ी डाउटफुल होंगी तो हम अपने इंटरप्रिटेशन को जो है वो सेल्फ करेक्शन के साथ ले जा सकते हैं। ये चंद बातें थी जो हम लोग देखते हैं इस हवाले से कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है हम उसको ट्रांजैक्शनल थ्योरी या फिर जो है वो जो दूसरी थ्योरीज हैं उनमें देख सकते हैं। इफेक्टिव रीड स्टाइलिस्टिक्स है, सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जिनको हम लोग 1 बाय 1 अगले लेक्चर्स में जो है वो कवर अप करेंगे। तो इस तरह साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। और उसमें फिर जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी है तो उसमें फिर आपकी एफरेंट रीडिंग है और स्टैटिक रीडिंग है, फिर या फिर हम लोग उसको जो है दूसरे जो है आइजर उसको जो है वो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट मीनिंग के सेंस में जो है वो यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारी डबल क्लास है ना जी। हेलो जी सर। समझ आ रही है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की? यस सर। दूसरी जो अप्रोच है टुवर्ड्स रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी दैट इज अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स, और मेन फिगर जो है इस जो है वो अप्रोच का वो है स्टैनले फिश। उसका फोकस जो है वो ये कि टेक्स्ट इज लुक एट क्लोजली। क्लोज रीडिंग का जैसे कॉन्सेप्ट है फॉर्मलिज्म के अंदर, तो यहाँ पर भी जो है वो टेक्स्ट इज लुक्ड एट क्लोजली, आप उसे बड़े केयरफुली यू रीड बिटवीन द लाइन्स। फोकस ऑन टेक्स्ट इज अ लॉ, ज्यादा जो फोकस है वो टेक्स्ट के ऊपर है। हाउ स्टाइलिस्टिक्स अफेक्ट्स रीडर, तो जो टेक्स्ट की जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, आपकी वर्ड चॉइस है, वोकैबुलरी है, आपकी जो सिंटैक्स है, बनावट है फिक्रों की, ठीक है, और जो दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं अब उनकी यूटिलाइजेशन जो है, तो वो किस तरह से जो है वो रीडर को जो है वो मतलब अफेक्ट करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करती है, उसका जो इम्प्रेशन होता है वो रीडर को किस तरह से जो है वो अफेक्ट करता है। तो अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक जो है वो इन चीज़ों के साथ डील करती है। टेक्स्ट इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑटोनमस ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता टेक्स्ट को। टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट्स रिजल्ट्स, टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट्स रिजल्ट्स, टेक्स्ट जो है वो रिजल्ट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन रीडर्स। टेक्स्ट जो है वो उसके क्या मानी हो सकते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो रीडर्स जो है वो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्टैनले फिश टॉक्स अबाउट हाउ अ टेक्स्ट इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड। तो स्टैनले फिश जो है वो बेसिकली बात करता है किसी टेक्स्ट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका उसका पैटर्न क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ रीडर, और फिर जो है वो रीडर का जो रिस्पॉन्स होगा उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से वो बात करता है। बट इट इज नॉट जस्ट इम्प्रेशनिस्टिक रिस्पॉन्सेस, जिस तरह से हम लोगों ने उसकी जो है वो एक एफरेंट रीडिंग या उसका जो है वो डिटर्मिनेट मीनिंग को जो है वो देखा है, तो ये जो है वो बेसिकली इम्प्रेशनिस्टिक रिस्पॉन्स नहीं होते। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट आर नॉट व्हाट अ टेक्स्ट सेज, और मीनिंग जो है टेक्स्ट के वो नहीं होते जो वो टेक्स्ट कहती है। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट आर व्हाट अ टेक्स्ट डज, टेक्स्ट के मानी वो होते हैं जो वो सरंजाम देती है या परफॉर्म करती है। For example, the Judas perished by hanging himself. There is no certainty in scripture. Judas perished by hanging himself.
there is no certainty in scripture, though in one place it seems to affirm it. By a doubtful word hath given occasion to translate it. Yet in another place, in a more punctual description, it makes it improbable and seems to overthrow it. तो जूडा के जो है वो पेरिस अपने आप को हैंग कर लेने वाली जो मिसाल है उसको जो है वो कोट करता है और बताता है कि इस बात में जो है वो कोई सर्टेनिटी नहीं है सहीफों के अंदर, स्क्रिप्चर के अंदर, और अगर चाहे एक जगह पर जो है वो उसको देख के तो लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन एक जो है वो थोड़ा सा शक गुजरता है जब एक दूसरे मौके पर जो है वो इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो वहाँ पर जो है ये अगरचे ज़्यादा उसकी पंक्चुअल जो है वो डिस्क्रिप्शन है, बट इस तरह की जो बात है जूडा जो है वो पेरिश्ड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, वो इम्प्रोबेबल लगती है, गैर इम्कानी है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो है वो उस स्टेटमेंट को ओवरथ्रो कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, अंडरमाइन करता है, तो तब उसके अंदर जो है ये एक डिफरेंट ओपिनियन जो हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो हैं वो वजूद में आती हैं कि वो एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो बता क्या रही है और वो सरंजाम क्या कर रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट दिस सेंटेंस डज टू रीडर, ठीक है। मीनिंग क्या है इस टेक्स्ट सेंटेंस के कि दैट जूडास पेरिश्ड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, और इस सेंटेंस का जो है वो रीडर के साथ जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जो उस टेक्स्ट की वजह से, उससे जो है वो फिर हम लोग उसके बेसिकली इफेक्टिव जो स्टाइलिस्टिक्स हैं उसका रोल देखते हैं कि रीडर के रिस्पॉन्स की फॉर्मेशन में किस तरह से जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट है, जो फिक्रों की स्ट्रक्चर है, जो वोकैबुलरी है जो यूज हुई है, वो कितना असर रखती है। प्रोमिनेंट फिगर जो है वो एक ये होगी इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। दूसरी अगली अप्रोच जो है वो है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। प्रोमिनेंट जो फिगर हैं इस अप्रोच के, इस सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के, वो हैं डेविड ब्लेश। डेविड ब्लेश, ये पहली जो अप्रोचेस, दो अप्रोचेस हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक जो है वो अप्रोच है ट्रांजैक्शनल, दूसरी है इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, और तीसरी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो है सब्जेक्टिव। फोकस इज नॉट ऑन द एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। इसका जो है फोकस वो टेक्स्ट के एनालिसिस पे नहीं है। रीडर्स रिस्पॉन्स इज टेक्स्ट। तो रीडर का जो रिस्पॉन्स होता है इस क्वाइट सब्जेक्टिव, इसलिए इसका नाम जो है वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है कि रीडर का जो रिस्पॉन्स है वही टेक्स्ट है। रीडर उसको जिस ढंग में देखता है, जो मानी उसको एक्चुएट करता है, तो वही एक्चुअली टेक्स्ट के मानी होते हैं। तो क्लेम है इसके, नो लिटरेरी टेक्स्ट एग्जिस्ट बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर्स, कि कोई भी रीडर जो है कोई भी टेक्स्ट जो है, लिटरेरी टेक्स्ट जो है, वो रीडर की इंटरप्रिटेशन के बाहर उसका वजूद मुमकिन नहीं है। यानी जो इंटरप्रेट रीडर कर देंगे उसको, उसी के अंदर उसका वजूद मौजूद है। टेक्स्ट विच इज एनालाइज्ड इज नॉट लिटरेरी वर्क। एक टेक्स्ट जिसका एनालिसिस किया जाता है वो दरअसल लिटरेरी वर्क जो है वो नहीं रहता, वो नहीं होता। व्हाट इज लिटरेरी टेक्स्ट? डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्सेस सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। रियल और सिंबॉलिक के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली लिटरेरी टेक्स्ट। रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एक्सपीरियंस है, एज इट अकर्स इन कंसेप्चुअल वर्ल्ड। इसकी जो फिजिकल जो है वो नहीं, बल्कि आप ये इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। जैसे आइडियलिज्म के अंदर आइडिया है, तो जैसे चेयर का आइडिया है, इट हैपन्स इन कंसेप्चुअल वर्ल्ड, और हम लोग इसकी फिजिकल जो शेप है वो मुख्तलिफ किस्म की चेयर्स के थ्रू जो है उसको देख लेते हैं। सो डेविड ब्लेश कॉल्स रीडिंग सिंबलाइजेशन। तो वो रीडिंग को जो है वो सिंबलाइजेशन कहता है, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस कंसेप्चुअल वर्ल्ड।
Interpreting meaning actually is interpreting meaning of conceptual experience. वो जो आपका conceptual experience है उसकी interpretation होती है उस जो है वो उसको जो meaning देने वाले बात है, ये meaning को जो है वो judge करने वाली बात है, उसको actuate करने वाली बात है, तो actually जो है वो हम लोग conceptual experience को जो है वो interpret कर रहे होते हैं. So conceptual experience is created in our response to text. तो conceptual जो experience है वो बेसिकली क्रिएट किया जाता है हमारा जो रिस्पॉन्स होता है टेक्स्ट को पढ़ के, उस रिस्पॉन्स में जो है वो हमारा कंसेप्चुअल एक्सपीरियंस शामिल होता है. सो इंटरप्रिटेशन इज रीसिम्बोलाइजेशन. एक दफ़ा जो है उसको कंसेप्चुअलाइजेशन का जो है वो राइटर की तरफ से आता है और हम लोग जो है उसको रीसिम्बोलाइज करते हैं, जो हमारा जो इम्प्रेशन होता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद. वी डू नॉट लाइक और डिसलाइक अ टेक्स्ट. तो हम किसी जो है वो टेक्स्ट को जो है वो ना तो लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं. वो लाइक और डिसलाइक सिंबलाइजेशन ऑफ इट, हम लोग तो बेसिकली उसको प्रोसेस ऑफ सिंबलाइजेशन को जो है वो लाइक या डिसलाइक करते हैं. इट्स नॉट टेक्स्ट ऑन पेज, रादर टेक्स्ट इन माइंड्स ऑफ रीडर. तो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली पेज पे नहीं होती बल्कि जो है वो राइटर के जो है वो दिमाग में होती है और उसके पेज में होती है, उसे पता होता है. रीडर जिस तरह से उसको रीड करता है, परसीव करता है, तो वो उसका वो जो रिस्पॉन्स है तो बेसिकली टेक्स्ट वहाँ पर है. ब्लेश वॉज हैविंग पेडागोजिकल इंटरेस्ट. तो ब्लेश की जो अप्रोच है दैट इज बेस्ड ऑन पेडागोजी. रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज टू लर्न अबाउट लिटरेचर. आप बच्चों को जो है वो दे दें कोई टेक्स्ट पढ़ने के लिए, कोई पैराग्राफ वगैरह या कोई स्टोरी या कुछ भी, और उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेज को जो है वो एनालाइज करें कि टेक्स्ट एक ही है लेकिन डिफरेंट रीडर जो है वो उसको पढ़ रहे हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेज किस तरह से जो है वो फॉर्मुलेट हो रहे हैं, कौन सा बंदा जो है टेक्स्ट को किस तरह से जो वो परसीव करता है, उसकी सिंबलाइजेशन को, और फिर उसको जब वो अपना रिस्पॉन्स देता है तो उसकी रीसिंबलाइजेशन कैसे करता है. मिसकंसेप्शन जो है इसके बारे में दैट देयर इज नो कोहेरेंस, कि कोहेरेंस नहीं है, और दूसरी बात जो है वो कि पर्टिकुलर जो है वो मेथोडोलॉजी जो है वो नहीं है. तो ये जो है वो सब्जेक्टिव रीडिंग के हवाले से, जो चूँकि सब्जेक्टिव है इसलिए वहाँ पे पेडागोजी और मेथोडोलॉजी और कोहेरेंस की बात जो है वो उसके ऊपर इस बात का एतराज़ात जो हैं वो किए जाते हैं. Methodology exists of producing knowledge. First, look at producing knowledge. Knowledge is subjective. Objective knowledge क्या एग्जिस्ट करता है, तो कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ नॉलेज के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जैसे रीडर जो है वो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अपना रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करता है कि ये है थ्रू लैंग्वेज. थ्रू लैंग्वेज जो है वो उन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो नॉलेज वो कहता है कि जो है वो बेसिकली जो है वो मेथोडोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती है नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर, और जो फर्स्ट लुक होती है वो प्रोड्यूसिंग नॉलेज. ठीक है, उसको देखा जाता है कि नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव है, तो क्या ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो वो एग्जिस्ट करता है, और कंस्ट्रक्टेड जो नेचर है नॉलेज की कि नॉलेज अवेलेबल नहीं, तो बल्कि हम लोग उसको देयर इज नथिंग नो नेचुरल नॉलेज, रादर वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन लैंग्वेज. आप क्लासरूम को जो है वो एज अ कम्युनिटी जो है वो फर्ज करें एंड लुक हाउ नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड. इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, तो वो सिंपल जो है वो दे आर पार्ट ऑफ दिस नॉलेज प्रोडक्शन प्रोसेस. ब्लेस जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ रिस्पॉन्स स्टेटमेंट एंड राइट एनालिसिस ऑफ देयर ओन रिस्पॉन्स स्टेटमेंट. आप उनकी रिस्पॉन्स स्टेटमेंट को एनालाइज करें. जैसे मैंने कहा कि आप एक टेस्ट दे दें बच्चों को, उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करें, समथिंग लाइक दैट. बेटा मिनट प्लीज़, अजान आ रही है तो फिर उसके बाद मैं
कंटिन्यू करता हूँ। जी, रिस्पॉन्स स्टेटमेंट जो हैं दैट आर रीडर ओरिएंटेड। तो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो रीडर के रिस्पॉन्सेज आते हैं, बेसिकली उनका ओरिजिन जो है वो रीडर्स होते हैं। तो क्या वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं रीडिंग एक्सपीरियंस का, और कोई थोड़ा बहुत या फिर कोई कनेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग के साथ उनका है या नहीं। रिस्पॉन्स स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली रियलिटी ओरिएंटेड होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं रीडिंग एक्सपीरियंस में, और वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्ड करता है उसकी ओपिनियन, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो, जो परसेप्शन उसकी होगी, वो जिस तरह से उसको कंप्रीहेंड करेगा, तो उससे जो है वो उसकी ओपिनियन बनेगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा टेक्स्ट के हवाले से। तो ये बेसिकली जो है उसकी ओपिनियन की जो रीडर जो है वो स्टेटमेंट होती है, उसकी रिस्पॉन्स स्टेटमेंट होती है, दैट शोज द ओपिनियन ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द रीडर। Response statements that are experience oriented, prompted by Blish, how a text made the reader feel। उसमें देखा जाता है कि टेक्स्ट जो है रीडर को कैसे कुछ फील करवाती है, उसको पढ़ के जो है वो उसके इमोशंस या उसकी फीलिंग्स जो है वो कैसे स्टिमुलेट होती हैं या वो मूव होती हैं। रिस्पॉन्सेज इंक्लूड जजमेंट्स रिलेटेड टू टेक्स्ट इवेंट्स एटसेट्रा। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं उसके अंदर जो जो जजमेंट्स होती हैं, रीडर जो है उसको पढ़ता है, चीज़ों को देखता है, तो उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर उनकी वो जजमेंट्स जो हैं टेक्स्ट के हवाले से या टेक्स्ट के अंदर जो इवेंट्स के हैं उनके हवाले से, वो भी शामिल होते हैं उसके रिस्पॉन्स के अंदर। तो अंडरलाइंग दीज जजमेंट्स आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और उन जो जजमेंट्स हैं उसके अंदर जो उनका पर्सनल नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो बेसिकली जो है वो उसकी बुनियाद होते हैं, वो इम्बेडेड होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज के अंदर। उनकी बेसिस पर वो जजमेंट करता है, और जजमेंट के बाद जो है वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट या अपना रिस्पॉन्स जो है या अपनी ओपिनियन जो है उसको स्टेट करता है। एग्जाम्पल जैसे है, कैरेक्टर रिमाइंड्स अ स्टूडेंट ऑफ हिज आर ओन एक्सपीरियंस। तो जैसे हम लोग डिफरेंट ड्रामों के अंदर, नॉवेल्स के अंदर या ड्रामों के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम लोग अपने आप को स्टूडेंट जो है वो उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो
फील करे कि जो किसी कैरेक्टर का जो एटीट्यूड है या कोई रवैया है या उसके जो इत्क़ादात हैं, तो वो उसके अपने ही एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे वो खुद अपने आप को जो है उसकी जगह पर फील कर रहा होता है। दिस इज़ व्हाट अ टेक्स्ट डज टू अ रीडर। ठीक है, ये उसका जो है वो जो है वो रिस्पॉन्स फॉर्मेशन में, उसकी रिस्पॉन्स स्टेटमेंट के अंदर जो है उसकी जजमेंट्स वगैरह को जो है वो इनकी बेसिस पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पर जो है वो फॉर्मुलेट करता है। कंट्रीब्यूशन जो है वो इस अप्रोच के वो है कि एक तो ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड करें कि जो चंद फोकस जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो फोकस क्यों किया जाता है और किस तरह से उनको फोकस करना और क्यों फोकस करना है। स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्सेज को कंपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो वो अपने रिस्पॉन्स को उनके साथ और उनके रिस्पॉन्सेज को आपस में भी जो वो कंपेरिजन कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ उसको उसकी रेलेवेंस को देख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो है वो हेल्प करती है इनके टेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। मुख्तलिफ लोगों का जो टेस्ट है ज़रा वो भी उनकी रिस्पॉन्स स्टेटमेंट के अंदर शामिल होगा, बेस करेगा उसके ऊपर भी, तो उनको भी अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प करता है। Knowing likes or dislikes is not enough. इस तरह से जो है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो हेल्प करती है कि इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि महज जो है वो लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स जो है उनको समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके जो है वो टोटल एक्सपीरियंस को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, और वो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। महज लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, बल्कि उनके पीछे जो फैक्टर्स हैं, जो हिडन फैक्टर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं उन लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जो है वो फॉर्मेशन में, उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना मकसद होता है। तो उसको जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, उसमें जो है वो स्टूडेंट को हेल्प करती है। ब्लेज फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, और ब्लेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग टेस्ट के ऊपर भी फोकस करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप कर किस तरह से किया जा सकता है और कलेक्टिवली जो है वो नॉलेज को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं टेक्स्ट के बारे में पढ़ें तो उसके हवाले से जो है जो उनके एक सिमिलर रिस्पॉन्सेज होंगे, सिमिलर जो है वो नॉलेज होगा उनका, तो उसके बेस पर जो है वो कलेक्टिवली जो है नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकें। रीडर जो है वो बेसिकली सिंपल ये नहीं होता कि वो उसको चीज़ों को कंज्यूम कर रहा होता है, रादर वो जो अपनी इंटरप्रिटेशन उससे है तो वो क्रिएटिव भी होता है, जो न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करता है उस टेक्स्ट से, उसके रिस्पॉन्स जो है उसका वो क्रिएटिव रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से वो टेक्स्ट को रिक्रिएट भी कर रहा होता है। काफ़ी है जी आज के लिए? यस सर, काफी है। जिसको कोई बात ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। स्टिल वी हैव कपल ऑफ मिनट्स, तो एंड इफ यू थिंक दैट इज क्लियर टू यू, आप उसको गो थ्रू करिएगा। मैं शेयर कर दूंगा जिससे आप में ये मटीरियल आपके साथ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के हवाले से। तो अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, तो आप अपनी रीडिंग्स के साथ जो है वो कल दोबारा क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग उसको दोबारा देख सकते हैं। ओके सर। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।